Welcome, students. Hope you all are fine and happy right now. So, in our last class, we have studied the general characteristics of algae, and we also come to know that the algae are three different kinds. Algae has been divided into three different classes, and the main classes are classes. Remember this word, classes, and the main classes are Chlorophyceae, Phaeophyceae, and Rhodophyceae. These Chlorophyceae, Rhodophyceae, and Phaeophyceae name given to these algae on the basis of the color that they bear or they appear. Means there are main three kinds of algae, which is based on the pigment that is present in the algae. मतलब एल्गी के अंदर जो पिगमेंट होता है उस पिगमेंट की वजह से वो एक पर्टिकुलर कलर का दिखता है, और उस कलर का दिखने के कारण उसको वो उस कलर के हिसाब से उसको नाम दिया गया है. अंडरस्टूड. सो क्लोरोफाइसी कंटेन द क्लोरोफिल, मीन्स इट दे आर ग्रीन एल्गी, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है. सो दे आर ग्रीन एल्गी. सिमिलरली Phaeophyceae contain the brown colored pigment, that's why they are called brown algae. और वैसे ही यदि हम Rhodophyceae के बारे में बात करें तो they are red color algae, that's why they are called Rhodophyceae. तो यहाँ पे आपने क्या देखा? Algae are classified on the basis of their pigment present. So the how many, यहाँ पे क्वेश्चन नोट करेंगे, नोट डाउन द क्वेश्चन. हाउ मेनी डिफरेंट क्लासेज ऑफ एल्गीज आर देयर? नोट इट डाउन. हाउ मेनी डिफरेंट क्लासेज ऑफ एल्गीज आर देयर? कितने सारे क्लासेज हैं एल्गी के? नेक्स्ट, अब चलो सबसे पहले आप लोग बुक का ये वाला चार्ट निकाल लो. इफ वी स्टडी कॉम्परेटिवली or we compare the different classes with respect to one another on the basis of different parameter, we will understand all these three kinds of different classes of algae very clearly. मतलब यदि हम comparatively इसको स्टडी करें डिफरेंट पैरामीटर पर तो इसको पढ़ना आसान होगा और समझना भी आसान होगा. तो सबसे पहले आप ये चार्ट निकाल लो ताकि मैं हर एक पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं. ओके, होप यू ऑल हैव बॉट आउट. नाउ लेट्स स्टडी. फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. So the common name, what is the common name given to the Chlorophyceae? They are green algae. What is the common name given to the Phaeophyceae? They are brown algae. And what is the common name given to the Rhodophyceae? They are red algae. समझ में आ गया बेटा? तो ये हो गया कॉमन नेम. सो नाउ द नेम इज गिवन अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर. मतलब ये जो नाम दिया गया वो पिगमेंट के कारण दिया गया है, जो पिगमेंट पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लासेस में मौजूद होता है उसके हिसाब से. तो अब बात आती है कि कौन कौन सा पिगमेंट मौजूद है. सो द Chlorophyceae कंटेन द क्लोरोफिल ए एंड बी. कौन कौन सा क्लोरोफिल है? क्लोरोफिल ए एंड बी. बहुत तरह का क्लोरोफिल होता है बेटा. क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई. इसमें से सबसे ज़्यादा रिच अमाउंट में जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, और उसके बाद आता है क्लोरोफिल बी. सो द डीपेस्ट ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल इज द क्लोरोफिल ए, एंड नेक्स्ट कम्स क्लोरोफिल बी. Now Phaeophyceae is obviously brown in color, but they also contain chlorophyll A and chlorophyll B, sorry, chlorophyll A and chlorophyll C. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे चीज़. जितना भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला टॉपिक है. द पिगमेंट दैट प्रेजेंट इन द Phaeophyceae इज फ्यूकोजैंथीन. ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है. क्लोरोफिल के अलावा भी ये पिगमेंट पाया जाता है, फ्यूकोजैंथीन. सो व्हाट आर द डिफरेंट पिगमेंट दैट आर प्रेजेंट? नोट करेंगे इसको. व्हाट आर द डिफरेंट पिगमेंट दैट आर प्रेजेंट इन Chlorophyceae?
second Phaeophyceae, and third Rhodophyceae. So in Chlorophyceae, you have seen that the chlorophyll A and chlorophyll B is present over there. In Phaeophyceae, chlorophyll A and C, along with that fucoxanthin is found. So fucoxanthin is very important for the NEET examination, as well as I can also ask the question when I will give the question for the test and revision all. Understood? And now the next comes chlorophyll A and D in Rhodophyceae. Rhodophyceae में कौन कौन सा क्लोरोफिल मिलता है? ए एंड डी. अरे क्लोरोफिल नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? तो क्लोरोफिल तो सब में मिलना है, लेकिन अलॉन्ग विद द क्लोरोफिल दे हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ पिगमेंट विच गिव द पर्टिकुलर कलर टू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एल्गी. समझ में आया? तो अब रेड कलर के एल्गी में कौन सा पर्टिकुलर पिगमेंट मिलेगा? फाइकोइरेथ्रिन. फाइको मतलब होता है प्लांट में पाया जाने वाला, इरेथ्रिन का मतलब होता है रेड कलर का पिगमेंट. फाइकोइरेथ्रिन. अंडरस्टूड? सो यू कम टू नो ओवर देयर आर 3 डिफरेंट पिगमेंट दैट आर फाउंड इन Rhodophyceae. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरेथ्रिन. ये बेटा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरूर लर्न कर लेना. नेक्स्ट स्टोर्ड फूड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फूड जो है वो किस फॉर्म में? ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज. अंडरस्टूड? एंड ग्लूकोज इज द बेसिक फूड दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बेसिक फूड के तौर पे बनाते हैं प्लांट, लेकिन वो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? सो ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च इन क्लोरोफाइसी. इन फियोफाइसी द स्टोर्ड फूड इज मैनिटॉल. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैनिटॉल एंड लैमिनरीन. क्वेश्चन पूछ देता है नीट में. द नेम द काइंड ऑफ algae which contain mannitol and laminarine as stored food. The kind of algae which contain mannitol and laminarine as stored food. तो कौन कौन सा है? और सबसे इम्पोर्टेंट तो बेटा ये भी है, फ्लोरिडियन स्टार्च. फ्लोरिडियन स्टार्च थोड़ा टर्म ज़्यादा है, इसके लिए भी मैं बता दूंगा कि किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है, कि ताकि जो हर टर्म है, जितने भी टर्म्स हैं, उसको आप स्टडी कर पाओगे और आपके लिए ये ईजी हो जाएगा. मैं बताऊंगा इसका तरीका, अभी पहले नोट कर लो. सो इन विच फॉर्म द ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन क्लोरोफाइसी, इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. इन फियोफाइसी it is in laminarine and mannitol, and in rhodophyceae it is in Floridian starch. So there are different kinds of food storage that are found in the 3 different kinds of algae. Understood? Now let's study about the cell wall. Yeah, there is a vital difference between the cell wall of the Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. So Chlorophyceae contains the cellulose. The composition of cell wall is made up of cellulose. And in case of Phaeophyceae, the cell wall is made up of cellulose and algine. ये आपने पहले भी पढ़ रखा है ना, एल्गिन जो है, पहले मैं बताया था ना इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गिन. एंड नेक्स्ट रोडोफाइसी कंटेन सेलुलोज. इसके अलावा और क्या होता है? पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर. समझ में आया? तो ये 3 डिफरेंट है, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर. ये हो गया ना, समझ में आया? नेक्स्ट, नंबर ऑफ फ्लैजिला. फ्लैजिला होगा कि नहीं होगा? पहला बात, यदि होता है तो कितने होंगे? नंबर ऑफ फ्लैजिला. इन क्लोरोफाइसी द नंबर ऑफ फ्लैजिला वेरी बिटवीन 2 to 8. 2 से लेकर 8 हो सकते हैं, और सब जो होते हैं इक्वल होंगे, एक ही साइज के होंगे और ऊपर की तरफ होंगे, एपिकल. 2 से लेकर 8 हो सकते हैं, होंगे तो एक साथ होंगे, 2, 4, 6, 8 जो भी है इक्वल होंगे. एंड एपिकल मतलब ऊपर की तरफ होंगे. इन दिस केस, इन केस ऑफ फियोफाइसी 2 अनइक्वल, 1 इज लार्जर एंड 1 इज स्मॉलर. लेटरल 2 तरह के होते हैं. सो 2 अनइक्वल साइज ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन फियोफाइसी.
And what happened in rhodophysi? Rhodophysi has no any kind of flagella. Now in which kind of water do they live? Means it is a habitat. कैसा habitat है? फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं क्लोरोफाइसी, बार्किस वाटर में भी रह सकते हैं, सॉल्टी वाटर में भी रह सकते हैं फियोफाइसी। फिर फ्रेश वाटर बहुत रेयर बार्किस वाटर में और सॉल्टी वाटर में। सम फ्रेश वाटर, सम बार्किस वाटर एंड सॉल्टी वाटर, मतलब समझ लो लगभग सेम ही है। मोस्ट ऑफ द जो रेड एल्गी होते हैं वो सॉल्टी वाटर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अंडरस्टूड? सो होप यू अंडरस्टूड each and every topic that has been explained by me over here. Now I am going to explain each and every line of the book that has been given over here. Let's start. So chlorophysi is green in color. Hope you understood why it has a green in color, because they contain the chlorophyll A and B as a pigment. Understood? Now the plant body may be unicellular, एक सेल का भी हो सकता है, क्लोनियल कॉलोनी में भी रह सकता है, एंड फिलामेंटस या फिलामेंट के कंडीशन में भी रह सकता है, फिलामेंट भी बना सकता है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन इन कलर ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। कौन सा क्लोरोफिल है? डोमिनेंस मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल ए एंड बी। अंडरस्टूड? सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ पिगमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट कहाँ मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को जब सेल चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। अभी बस इतना जान लो, दे आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेट शेप, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पायरल, रिबन शेप, मतलब क्लोरोप्लास्ट का भी डिफरेंट शेप हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारा शेप दे रखा है, देख लो। डिस्कॉइड मतलब डिस्क जैसा, डिस्कॉइड प्लेट जैसा, प्लेट के जैसा, गोल तस्तरी जैसा, रेटिकुलेट जाली जैसा, क्लब शेप, क्लब मतलब होता है फुला हुआ बीच में ऐसा, क्लब शेप, स्पायरल, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, वो मतलब नहीं रहता है, दैट डजंट मैटर। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, मतलब फूड को स्टोर करने के लिए कुछ होता है, और इस स्टोरेज बॉडी को क्या बोलते हैं? पायरेनॉइड। सो नोट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट इज पायरेनॉइड? व्हाट इज पायरेनॉइड and where it is located? And where is it located? Where is it located? Where is it located? So paranide is a body which store the food. It is located inside the chloroplast. Where is it located? ठीक है. So most of the member have one or more storage body that is called paranoid, and they are located in the chloroplast. Paranoid contain protein beside starch. इसमें क्या क्या होता है? It contain both the protein as well as starch. Some algae may store food in form of oil droplet. Green algae usually have a rigid cell wall. कैसा cell wall होता है? Rigid cell wall. rigid cell wall किस चीज़ का बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। You have already studied in comparatively in the chart, है ना? आपने अच्छे से पढ़ा था ना उस चार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन कैसे होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से। बॉडी उनका टूट जाएगा, जितना पीस में टूटेगा हर एक पीस जो है कैन एबल टू प्रोड्यूस अ न्यू यंग वन। अंडरस्टूड? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजलेट जूस्पोर। जूस्पोर के बारे में बताया था ना, द स्पोर विच कैन एबल टू मूव एंड दे मूव फ्रॉम देयर पेरेंट टू द फार डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ फ्लैजला। वो स्पोर जिसके पास फ्लैजला होगा वो दूर तक मूव करेगा और मूव करके नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द जूस्पोर, फ्लैजलेट जूस्पोर प्रोड्यूस जूस्पोरेंजिया। स्पोर फट करके क्या निकलेगा? स्पोरेंजिया निकलेगा, और वो स्पोरेंजिया से असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। अरे बेटा इसको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो, जूस्पोर प्रोड्यूस स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का मतलब होता है स्पोर, स्टेम लाइक बॉडी, और ये स्पोरेंजिया से एक फ्रूटिंग बॉडी होगा, उसमें से टूट करके निकलेगा बहुत सारे स्पोर्स। So the zoospores are motile. They move from their parent to the distant place with the help of flagella, and there they grow into sporangiospore. And this zoosporangia
Angiosporangia produce a lots of small cellular structure which develop into a new organism. Understood? Now, the sexual mode of reproduction is shown considerable variation in type of formation of sex cells. मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. तो मैंने बताया था ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके जिससे वो लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं. तो अलग अलग कौन कौन से तरीके से फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं? बाई आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, यानी तीनों तरीका ये अपना सकते हैं फॉर देयर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. और इसके लिए इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? मैंने कहा था ना एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ, वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोरोफाइसिया, क्लैमिडोमोनास, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, ये सब के नाम को अच्छी तरह से नोट करेंगे और लिखेंगे. सो you should note all the data that has been given over here. So if I ask in which form the question, सुनोगे बेटा, in which form the food is stored in chlorophysi, food किस फॉर्म में स्टोर रहता है? Yes, starch. What is the composition of cell wall in chlorophysi? Cellulose, sorry. What is pyrenoid? Pyrenoid is the, yes, storage bodies found inside the chloroplast. They contain both the starch along with little amount of protein. How do the chlorophysi reproduce asexually? How do the chlorophysi, member of chlorophysi लिखिएगा. How do the member of chlorophysi reproduce asexually? Member of chlorophysi reproduce asexually with the help of zoospore. Zoospore grow into zoosporangia, है ना? So how do they reproduce sexually? They reproduce sexually by all three process, means isogamous, anisogamous and oogamous. So give some examples. क्लैमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूथ्लाइडिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं. बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा सारा का सारा पॉइंट. नाउ वी आर गोइंग टू, यहाँ फिगर भी दिया हुआ है, आप लोग कंपेरेटिवली इस फिगर को भी स्टडी करेंगे. यहाँ पे सारी चीज़ें देखो, यहाँ पे देखो वॉल्वॉक्स और यूथ्लाइडिक्स लिखा हुआ है ना. तो ग्रीन एल्गी का मतलब क्या हो गया? क्लोरोफाइसी, है ना. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट क्लास, दैट इज फियोफाइसी. Phaeophysi are also called brown algae, and brown algae is due to the pigment that is present, brown color pigment that is mainly present inside the Phaeophysi. So what is the name of the pigment that is present in the Phaeophysi? Chlorophyll A, chlorophyll C and fucoxanthin. भूल गए क्या बेटा? यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूल जाना चाहिए, सारे के सारे यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है. सो Phaeophysi are brown algae found primarily in the marine habitat. कहाँ मिलता है? समुंदर में. And they show great variation in size. साइज इसके छोटे बड़े हो सकते हैं. They are range from simple to branch. एक छोटा सा भी हो सकता है और इसके बहुत सारे ब्रांच भी ऐसे 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 निकले हो सकते हैं ना, ऐसे ऐसे ब्रांच भी निकले हो सकते हैं. दे ब्रांच हो सकते हैं. दे में भी फिलामेंटस फॉर्म होगा तो क्या होगा? इक्टोकार्पस. बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन निट में आते हैं. निट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फिलामेंटस. सो नेम द ब्राउन कलर फिलामेंटस एल्गी. नेम द ब्राउन कलर्ड फिलामेंटस एल्गी. इक्टोकार्पस. प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, बहुत लंबा लंबा ब्रांच होता है. एंड रिप्रेजेंटेड बाय केल्प. और कहाँ मिलता है? केल्प. ये केल्प जो है ये एक तरह का वीड है. वीड मतलब एक तरह का एल्गी जो कि मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? पोलर रीजन में पाए जाते हैं. जितने भी जानवर हैं वहाँ पर जो इकोसिस्टम चलता है वो केल्प की वजह से ही चलता है. रिमेंबर दिस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर. ओके. सो दे आर फॉर्म ऑफ ब्रांच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाई केल्प. इसको केल्प भी कहा जा सकता है. विच में रीच द हाइट ऑफ 100 मीटर. कितना लंबा तक जाता है? 100 मीटर. अंडरस्टूड. ठंडे देशों में जहाँ पर सिर्फ ठंडा है, बर्फ़ है, उन जगहों पर तो कोई प्लांट उगता नहीं है.
तो वहाँ पर ये केल्प ही उगता है और इसी केल्प को सारी मछलियाँ खाती हैं और उन मछलियों को पोलर बियर, पेंगुइन वगैरह खाते हैं, सील वगैरह खाते हैं और पूरा इकोसिस्टम इन्हीं की वजह से चलता है। वहाँ पर मेन प्रोड्यूसर ये केल्प ही हैं। समझ में आया? सो व्हाट आर द डिफरेंट, नोट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट पिगमेंट दैट आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी? क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन, कैरोटीन ऑरेंज कलर का, कैरोटीन जो है कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड जो है वो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है, तो कैरोटीन भी पाया जाता है, कैरोटेनॉइड भी पाया जाता है। ज़ैंथोफिल ये येलो कलर का पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए, सी ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। कैरोटेनॉइड ब्राउन कलर, सॉरी कैरोटेनॉइड ऑरेंज कलर का पिगमेंट है और ज़ैंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट है। ये तीनों कलर, ये तीनों के तीनों पिगमेंट पाए जाते हैं। आपके बुक में वहाँ पर नीचे की तरफ जो चार्ट दिया हुआ था उसमें फ्यूकोजैंथिन भी लिखा हुआ था, तो आप लोग उसको भी याद कर सकते हैं। फ्यूकोजैंथिन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। दे कलर आर वेरी फ्रॉम ऑलिव ग्रीन, कैसा कलर का हो सकता है? ऑलिव ग्रीन से होते हुए ब्राउन कलर तक का इनका कलर हो सकता है। और ये ऐसा ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर तक का कलर होने का कारण क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन। ज़ैंथोफिल हुआ तो ये पीलापन लाएगा और फ्यूकोजैंथिन हुआ तो ये ब्राउनिश कलर लेके आएगा। समझ में आया? फूड इज स्टोर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में मौजूद नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद होता है। बताया था ना, मैनिटॉल और लैमिनरीन, भूल गए क्या? मैनिटॉल एंड लैमिनरीन आर द मेन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट इज stored inside the brown algae. Yes, the vegetative cell wall is made up of cellulosic, मतलब सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है और सेलुलोज के साथ साथ ये तो सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है, इसके साथ साथ इसके ऊपर में एक प्रोटीन लगी हुई है जो इनको भीगने नहीं देती। जेलाटिन की तरफ प्रोटीन है, जेलाटिन। क्या नाम है? एल्गिन। क्या नाम है? एल्गिन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये एल्गिन। सो दे कवर्ड विद जेलाटिनियस कोटिंग कॉल्ड एल्गिन। एल्गिन रहता है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन एडिशन ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड के अलावा क्या होता है? सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, एंड न्यूक्लियस। बॉडी, प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू द सबट्रैक्टर, मतलब जमीन से प्लांट बॉडी, सबट्रैक्टर मतलब जमीन हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, किसी भी चीज़ से प्लांट बॉडी चिपका हो सकता है। और वो चिपकेगा किस माध्यम से? होल्ड फास्ट। अभी मैंने आप लोगों को प्लांट बॉडी दिखाया था ना, ऐसा मान लो ये प्लांट बॉडी है और ये ऐसे ज़मीन से चिपका हुआ है, तो यहाँ रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बट रूट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं होल्ड फास्ट। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन लीफ नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रॉन्ड। समझ में आया? तो प्लांट बॉडी कैसा हो सकता है? किसी भी तरह का शेप का हो सकता है। देखो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं प्लांट बॉडी, एक छोटा सा, ऐसे मान लो ये प्लांट बॉडी है, ये एक प्लांट बॉडी बनाया, ये छोटा सा होल्ड फास्ट बना दिया, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको फ्रॉन्ड बोलेंगे, और ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग स्टाइक बोलेंगे, है ना। लेकिन ये ना ट्रू नहीं होता। सो प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबट्रैक्टम विद द होल्ड हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। प्लांट बॉडी को कौन पकड़ के रखता है? होल्ड फास्ट। इसके अलावा इट हैज ए स्टॉक, मतलब स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टाइक। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, लीफ पत्तों की तरफ स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, बॉडी टूट करके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से होता है? जूस्पोर के माध्यम से होता है। और जूस्पोर कैसे होते हैं? फ्लैजिलेट होते हैं, मतलब उनके अंदर में फ्लैजला होता है। तो पहले हमें बता दिया था जूस्पोर में फ्लैजला होगा। दैट आर पियर शेप, कैसा दिखता है? पियर के जैसे, नाशपाती के जैसे, है ना। टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजला, मतलब एक बड़ा फ्लैजला है और एक छोटा फ्लैजला है। पहले मैं बताया था, आपके बुक में ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसका फिगर बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, एनामोगैमस। ऑल द थ्री काइंड ऑफ प्रोसेस कैन बी
taken place in during the course of sexual mode of reproduction. Understood? So union of gamete can be may be take place in water within the oogonium, means oogamous species. The gamete are pyriforms. मतलब कैसा होता है गैमेट जो होता है वो किस तरह का होता है, पीयर से भी, देखो ऐसा समझ में आता है, ये ऐसा ही है गैमेट ऐसा होगा। और वो सिंपल सी बात है, एकदम बेसिक चीज़ जो है वो यही है कि तीनों तरीके हो सकता है। पानी में होगा तो क्या होगा, ये जो जितने भी स्पर्म है, स्पर्म तो होता नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाने के लिए एक मीडियम चाहिए ना, तो वो मीडियम क्या होगा, पानी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, वाटर में होता है। अंडरस्टूड? क्योंकि उस समय जो मेल गैमेट है वो मूव होकर के फीमेल गैमेट के पास जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वाटर विद इन द oogoनियम और oogamous स्पेसिस। द गैमेट्स आर पायरोफॉर्म। गैमेट किस तरह का होता है, पियर शेप होता है, एंड बियर टू लिटरली अटैच फ्लैजेला, उसमें फ्लैजेला भी होता है। कॉमनली फॉर्म, इसका एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ बेटा, इक्टोकार्पस, डिक्टोएटा, लैमिनेरिया, सैग्रेशम एंड फ्यूकस। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूकस तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे वो निकाला जाता है, क्या ऐसे कहते हैं, एगर निकाला जाता है ना। लैमिनेरिया से लैमेलिन निकाला जाता है। ये सब के कमर्शियल यूज़ है, मैंने बताया था ना यूज़ में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यू टॉपिक, दैट इज न्यू क्लास, दैट इज rhodophyceae. Rhodophyceae are green in color, red in color due to presence of red colored pigment. And what is the name of red colored pigment? R phycoerythrine. Very important, note it down. So what is the name of red colored pigment? ये सब नोट करेंगे बेटा, जो जो टॉपिक को मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यू हैव टू नोट इट डाउन इन ब्लॉक एंड यू हैव टू रीड एवरी डे फॉर अबाउट 5 to 10 minutes. After learning for about 5 to 10 days you will learn all the given topic. मतलब पढ़ने का तरीका मैं बता दूं, आप लोगों को ये नाम जो है बहुत अटपटा लग रहा होगा, बहुत बुरा लग रहा होगा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, बायोलॉजी बहुत ख़राब लग रही होगी आपको, बट ये सारे के सारे टर्म बहुत आसानी से याद कर सकते हो आप। जैसे मैं डाटा तैयार करता था, नोट्स तैयार करता था, वैसे ही आप सारे के सारे नोट्स तैयार कर सकते हो। जैसे रोडोफाइसी लिख लिया, रोडोफाइसी रेड कलर का है, रेड कलर का क्यों है, रेड कलर का पिगमेंट का नाम लिख दिया। ये मैंने अभी आप नीचे में जो चार्ट दिखाया था उसके हिसाब से भी लिख सकते हो। फूड किस फॉर्म में जमा होता है, यदि ये चार्ट को भी अच्छे से लर्न कर लो बेटा, यू विल लर्न ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली। अंडरस्टूड? तो इस चार्ट को भी आप लिख करके याद कर सकते हो। या आपको तीनों क्लास जो है किसका, एल्गी का, आसानी से याद करा देगा। ठीक है, तो घबराओ मत, एक एक चीज़ को लिख के रखो और घर पे जा करके थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस किया करो, उसको लर्न किया करो। जब भी आपको फुर्सत हो 5-10 मिनट के लिए जिस कॉपी में लिखे हो उसको पलट के देख लो और उसको रिमाइंड करने की कोशिश करो। दूसरे दिन भी करो, तीसरे दिन भी करो, चौथे दिन भी करो, 5वें दिन करते करते वो याद हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को वरी नहीं करना, सारे टॉपिक्स बहुत क्लियरली याद हो जाएंगे। नॉट टू वरी, अंडरस्टूड? इट्स वेरी इजी, डोंट वरी, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और मैं भी आप लोगों को याद करके बता दूंगा किस तरह से याद किया जाता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैरीन। कहाँ पाए जाते हैं, समुंदर में। ग्रेट कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया, जहाँ पे गर्म होता है उस जगह पे सबसे ज़्यादा रेड एल्गी पाए जाते हैं। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन। वेल लाइटेड, जहाँ पे लाइट ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए दौड़ के जाएंगे, तो इसलिए वो बहुत अच्छा होता है। लूज टू द सरफेस ऑफ वाटर, मेनली सरफेस ऑफ, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब सरफेस वाटर के नज़दीक होते हैं। नेक्स्ट, रेड थैली, मतलब रेड कलर का जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, थैलस मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, विच इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। नीट के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल, मतलब फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो
एनिमल बॉडी में जो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो है एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टार्च जमा होता है, तो ये एनिमल वाला कैरेक्टर बियर कर लेता है, मतलब कुछ कैरेक्टर इसके एनिमल वाले हैं। यानी कि ये जो स्टोर करता है फूड को, वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखा है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखा है, जो कि मिलता जुलता है ग्लाइकोजन से। मतलब ये शो कर रहा है कि किस तरह से जो एल्गी हैं वो धीरे धीरे डेवलप होकर के इकोलॉजिकली इवोल्यूशन के हिसाब से किस तरह से ये जो रेड एल्गी है वो एनिमल में कन्वर्ट हुए होंगे। यहाँ से एक छोटा सा लिंक मिल रहा है, क्योंकि प्लांट में जो ग्लूकोज जमा होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, बट यहाँ पर ये स्टार्च कुछ इस तरह का ही है कि वो ग्लाइकोजन की तरह है, यानी कि एनिमल की तरह है। तो ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक प्लांट से किस तरह से एनिमल जो हैं वो आए होंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। समझ में आया? सो द फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन, यानी कि एमाइलेज और पेक्टिन मतलब प्रोटीन है, मतलब एमाइलोपेक्टिन मतलब एक तरह का प्रोटीन विथ सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अंडरस्टूड, और ग्लाइकोजन, और इसके साथ ग्लाइकोजन है जो कि एनिमल के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बियर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फॉर नेट। आया भी होगा क्वेश्चन आप लोग, एमटीजी का बुक, एमटीजी का 40 ईयर सॉल्यूशन ऑफ नीट का ले लो, और चैप्टर वाइज उसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को स्टडी करो एक एक करके, आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन जो है वो अराइज किए जाते हैं। एमटीजी की किताबें आती हैं मार्केट में, आप लोग वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन, एंड दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। इनका स्पोर जो है मूव नहीं करता, नॉन मोटाइल स्पोर मतलब मूव नहीं करता, और सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल सेक्सुअल ऑर्गन से, नॉन मोटाइल सेक्सुअल ऑर्गन यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, गैमेट से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। मतलब इनका गैमेट भी मूव नहीं करता, एनाइसोगेमस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous के माध्यम से करते हैं विद कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीस्फोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम, ये सारे के सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट करके रखोगे। सो टुडेज क्लास we have studied the whole classification of डिवीजन एल्गी डिवीजन के हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस, तीनों क्लास के बारे में अभी स्टडी कर लिया विद देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑल। लेकिन इस चीज़ को जरूर याद करोगे, इससे आपको बहुत सारे वाइटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, और होप फॉर योर बेटर लर्निंग। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछो। थैंक यू, बाय बाय। थोड़ा लंबा हो गया।